Let's start with the discussion of QA sectional test 13. Start with the selection of questions first. Starting with question number one. Question number one, something from ratios and profit loss. You should have attempted it. Part one में डाल दीजिए. Question number two, something from equations and number system. You could have skipped it for now. Part two में डाल दीजिए. Question number three, something from number system or probably part two में डाल दीजिए for now. Question number fourth, time speed distance. You should have attempted it. Part one में डाल दीजिए. Question number five, something from geometry. Skip it for now. Part three में डाल दीजिए. Question number six, log. I guess you could have skipped it for now. Part two में डाल दीजिए. We'll look into it on a later stage. Question number seven, number system है मेरे हिसाब से छोड़ दीजिए. Part two में डाल दीजिए. We'll look into it later. Question number eight, मेरे हिसाब से I guess time speed distance, time and work से related कुछ है. Could have attempted it. Part one में डाल दीजिए. Question number 9, coordinate geometry. Skip it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 10, सबसे नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ लग रहा है. Could have skipped it for now. Part 2 में डाल दीजिए. Question number 11, greatest integer function आपको अभी नहीं आता होगा. Hopefully आप skip कर सकते हैं. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 12, something from profit loss. You should have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 13, something from number system. I guess you could have skipped it for now. Part 2 में डाल दीजिए. Question number 14, function से related है. Skip it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 15, averages 100% you should have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 16, geometry. Skip it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 17, ratios. I guess allegation mixture. You should have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 18, polynomial equations. Skip it for now. Part 3 में डाल दीजिए. 2 में डाल दीजिए. Question number 19, geometry. Skip it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 20, permutation combination. I guess you could have attempted it because इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने किए हुए हैं. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 21, SP profit loss. You could have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 22, number of integral solution बोला है. मेरे हिसाब से you should have skipped it. Part 3 में डाल दीजिए. Part 2 में डाल दीजिए. Let's start. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1. बताने का है किसी को? Yes, sir. Let's start. Two types of rice, P and Q are mixed and are sold at 60 per kg. Profit is 20% if P and Q are mixed in the ratio. देखो P का कॉस्ट प्राइस नहीं पता है आपको, 100x ले लो. Q का कॉस्ट प्राइस नहीं पता है आपको, 100y ले लो. P and Q are mixed in the ratio 4:3. मतलब इसका 4 किलो लिया प्लस इसका 3 किलो लिया. ये आपका CP आया. आपको 20% का प्रॉफिट है. ये आपका SP आया. और SP दे रखा है आपको 60 पर kg, 7 किलो का 420. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. प्रॉफिट इज 10% में 3-4 का रेशियो लिया. 3 इसका किलो लिया, इसका 4 किलो लिया. 10% का प्रॉफिट है और एसपी अभी भी सेम रहेगा बिकॉज वही 60 रुपीज के हिसाब से 7 किलो लिया. दो वेरिएबल, दो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे करके बताओ. हो जाएगा. हो जाएगा. एनीवन हो नीड्स? जाएगा. ओके फाइन, परफेक्टली फाइन. शैल आई रिमूव दिस? Yes. नेक्स्ट प्लीज. 4. बताने का है किसी को? सर Yes. ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है क्या? पता नहीं मैम, लेट मी रीड इट आउट. रवि मेड एन अपस्ट्रीम जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर इन अ सर्टेन टाइम. इफ his speed in still water was 2 km per hour less and the speed of the stream was 2 km per hour more, he would have taken 5 hours more for that journey. Find his upstream speed. हाँ सर, ये हुआ नहीं. पता नहीं, लेट मी जस्ट चेक. मेरे को भी नहीं पता होगा नहीं, तो देख लेते हैं एक बार. 15 किलोमीटर जा रहे हो आप. किस स्पीड से? x मतलब X. प्लस x माइनस y. कैन आई टेक इट टू बी अपस्ट्रीम स्पीड u? चलेगा x Yes, माइनस. sir. हाँ सर. दूसरे केस में आपने यही 15 किलोमीटर ट्रैवल किया, लेकिन अपस्ट्रीम में क्या हुआ? स्पीड ऑफ हिज स्पीड इन स्टिल वाटर वाज 2 किलोमीटर लेस. आपकी स्पीड 2 से रिड्यूस हो गई बोट की, और स्ट्रीम की 2 से बढ़ गई. तो अपस्ट्रीम स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा? 0. सॉरी सर जीरो न्यूट्रल हो जाएगा ना? न्यूट्रल हो जाएगा. -4 का पड़ेगा ना. तो 4 किलोमीटर. हाँ सर, 4 का पड़ेगा. फर्क पड़ेगा. क्या फर्क पड़ेगा 4 का? नहीं पड़ेगा. सर अबे नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा वो नहीं बोल रहा हूँ. +4 होगी -4 होगी, ये बताने का 4 का पड़ेगा. -4. और इसकी वजह से आपको 5 घंटा ज्यादा लगा. यस सर. तो आ जाएगा. यस हाँ. सर. तो निकालने का था. यस सर. हो जाएगा सर. 15 कॉमन लो, u - 4.
अपॉन u माइनस 4 इक्वल टू 5, ये कट गया 3 में, हो जाएगा u इंटू यू माइनस Yes, 4 sir. इक्वल टू 12, हो जाएगा ना? Yes, sir. हाँ, sir. हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट प्लीज। सर 8 8। Shall I remove this? सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। Yes, ma'am. Take your time. हाँ जी हो गया। 8 बताने का है किसी को? नो सर। No, No sir। sir. नो सर नेक्स्ट प्लीज। 12th। Yes sir। बताना है? यस सर बताना। हाँ नो सर यार अभी आपको मेरी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? कुछ क्वेश्चन भी नहीं सर। क्वेश्चन दिख रहा है मतलब। क्वेश्चन दिख रहा है क्या? 1 मिनट का टाइम दीजिए आप, बस फोन नहीं है एक्चुअली। Fine. I was just taking the photo of list of participants. अभी इसमें से मैं at the end of the meeting बताऊंगा कौन कौन बोलता नहीं है. Please remind me, any one of you, please remind me in the next meeting कि सर उनको अलाउ नहीं करने का. जो बोलेगा उसको अलाउ करूंगा, बाकी को मेरे को कोई जरूरत नहीं है किसी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12, हीरा, ये बताना है ना? हाँ जी Yes. सर। यस सर Hira, a fruit vendor sold 12 coconuts, all of which are of the same cost price, such that the profit percent of no two coconuts is the same. The profit made on the given coconuts, however, is arithmetic progression. If the profit percent on the fifth coconut was with the fifth percentage of the profit percent of the coconut with the fifth highest and eighth highest selling price for 14 and 11, find the profit percent of the whole. अरे यार, चलो देखते हैं। आपके पास सीपी है 12 और सब पे अलग अलग प्रॉफिट परसेंट है। फिफ्थ प्रॉफिट परसेंट आपका 14 है, यस सर एट्थ आपका 11 है। हाँ ओवरऑल कितना होगा विदाउट पेन पेपर? कोई लॉजिक समझा सकता है मुझे? मतलब ये एपी पूरी सर कंप्लीट करके आपने किया मतलब तो मीन में पूरा मीन एवरेज निकाल निकाल लिया। दिया क्या? किसका? सर एपी के फर्स्ट और लास्ट से करते हाँ तो एवरेज सर। सेम ही हाँ रहता। ये 14 + 11 एपी by में 2 कर एक दिया। रूल होता है हाँ कि whenever you are taking the same position value from first and last, हम्म। उसका सम सेम रहने वाला है। मतलब आप इन दोनों को पिक करके जो वैल्यू लोगे वो भी 25 ही आएगा। हाँ बताया था ये? यस सर। हाँ सर यस बताया सर। और एवरेज क्या होता है? इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, हाँ तो इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 कर दो। यस सर। डायरेक्टली समझ में आया? पूरा करके बताऊं? फिफ्थ नो टर्म सर का ये ले लेने का है, एट्थ टर्म का ये ले लेने का है, इससे डी पता चलेगा -1, -1 पता चला तो ये -4 हो गया, यानी ए का वैल्यू हो गया 18। 18। उसके बाद सम ऑफ एपीज लगाने का है, उसके बाद एवरेज निकालने का है। तो सम ऑफ एपीज होगा 12/2, 2a plus n minus 1 into -1. What is this? 25। 25 into 6, 150. And this is the profit of 12, so 12.5. 12.5। और अगर ये सब नहीं करना था तो थोड़ा सा सोचने वाली बात थी, you would have got the answer directly. Clear है? यस सर। Yes. यस सर Shall I go ahead? Yes. हाँ यस जी सर सर। Shall I यस remove this? यस यस सर सर So Next, please. 15। The average score of students in section ABC. बताना है किसी को? यस सर। नो नो सर। हाँ ABC में एवरेज दे रखा है सॉरी ए सर, और हो गया ये, हो गया हो गया। बताना है, नहीं बताना। नेक्स्ट प्लीज। नहीं सर एक मिनट। 17। मैम बताना है। सर ये तो हाँ जी। एलिगेशन से कर सकते हैं ना आराम से। हाँ एलिगेशन सर से ये ही करो। एलिगेशन देगा। हाँ एलिगेशन पे मैम बताना है। वंशिका
नहीं सर, अब रहने तो एलिगेशन से हो जाएगा। आपको आता है एलिगेशन से? हाँ, अब याद आ गया कैसे करना था, आपने Perfect. बताया है काफी। मैं तो सब बताया मैंने। नेक्स्ट प्लीज। हाँ सर। 17. बताना है किसी को? नो यस सर। सर, बता दो। यस सर। मैडम आपको क्या चाय नहीं मिली? कैसे रोते रोते क्यों बोल सर रहे हो? मेरे को डाउट है। हाँ सर, नहीं मिली चाय। नहीं मिली तो मैं थोड़ी दूंगा। ऑर्डर करो तो मेरी भी मंगवा लेना। बोलो तो ढंग से। ठीक है सर। ऑर्डर कर दोगे? कर रही हूँ सर। अच्छा, मैडम को एक बार देखना ना, मेरी भी हो जाए। डन सर। आपको बता देता हूँ। Nerolic paints mixes green and white in the ratio 4:7 in the tank. However, after mixing, the company finds that the resultant shade has less of green and removes 24 liters of the mixture and adds an equivalent quantity of green. The shade thus obtained has green and white in the inverse ratio. How many liters of mixture was there in the tank initially? How many liters of mixture? ये क्या बकवास है? चलो कोई ना, देखते हैं। जस्ट टेल मी वन थिंग, रिप्लेसमेंट फॉर्मूला लग सकता है क्या? नहीं सर। नहीं। सर एक बार ही तो है, तो रिप्लेसमेंट फॉर्मूला क्यों सर ना। हाँ। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है मैडम? ये थोड़ी है कि एक बार नहीं लगा सकता। मैं तो पूछ रहा हूँ लग सकता है क्या? हाँ मतलब लगाने को हाँ तो सर। कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है? लग। सर आपने नहीं बताया सर, था ना रिमूव कि करके उतना ही ऐड कर रहा है तो लग ऐड सकता कर है। रहे तो रिप्लेसमेंट नहीं लगेगा ना सर। सर नहीं लगेगा ना, आपने क्योंकि सर बताया था वो सेम वाले मिक्सचर में नहीं रिमूव कर रहा है लगता। ना। बराबर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कौन बता रहा है? वरुण का तो मैंने सुन लिया, बाकी और कोई रीजन दे रहा है वरुण सर के कुछ अलावा? ऐड कर रहे हैं अपन। ओके, ठीक है। और दीक्षा, यू वर सेइंग नहीं लगेगा? हाँ सर लग सर, क्योंकि हम इसी को ही कर रहे हैं ना हम रिप्लेस। अच्छा, सक्षम सेम आप कुछ बोल क्वांटिटी रहे में हैं? नहीं लिखता ना। यस सर लग जाएगा ना, इसमें 24 लीटर हटा के फिर वापस ऐड कर रहे हैं। हंड्रेड फिर वो परसेंट लग मिक्सचर का जाएगा। हटा के ग्रीन ऐड कर रहे हैं ना। हाँ, तो क्यों नहीं हाँ लगेगा बट भाई? रिप्लेस ही कर रहे हैं ना उसमें। यस सर। 100% लगेगा। किस पे लगेगा? वाइट पे लगेगा सर, वाइट। उसको हटा वाइट रहे पे हैं। लगेगा। इनिशियली वाइट वाइट पे कितना लगेगा। था? ओ 7x। सर, 7 by है। 11। 11। 7/11 हाँ। फाइनली वाइट कितना है? सर 4/11। टोटल क्वांटिटी पता नहीं, क्वांटिटी रिप्लेस 24, टोटल क्वांटिटी पता नहीं, हाँ या ना यहाँ तक? हाँ। यस क्रॉस सर। मल्टीप्लाई। यस सर। 4x इक्वल टू 7x माइनस, तो इस साथ 168। 8 आ जाएगा। 8 3x आ इक्वल टू जाएगा। 168। अच्छा। x इक्वल टू 56। यस सर। सर एक छोटा सा डाउट था। यस प्लीज। ये मतलब कि एलिगेशन कब नहीं लगता है, मैं भूल गया सर। एलिगेशन नहीं, रिप्लेसमेंट बोलना सीखो पहले। हाँ मतलब रिप्लेसमेंट। हाँ, पहली चीज, अनइक्वल क्वांटिटीज का मूवमेंट हो। हाँ 20 हटाई 22 डाल दी, नहीं लगेगा। ठीक है। यू आर रिप्लेसिंग बाय मिक्सचर, तो रिप्लेसमेंट फॉर्मूला नहीं लगता। जो आप सब्स्टिट्यूट डाल रहे हो ना, वो प्योर सब्सटेंस होना चाहिए तो रिप्लेसमेंट लगेगा। अगर सब्स्टिट्यूट डाल रहे हो उसमें भी मिक्सचर है तो रिप्लेसमेंट नहीं लगेगा। यस सर। यू आर सर रिप्लेसिंग इट बाय अगर हम प्योर ग्रीन कलर, लग जाएगा। हाँ अगर से सेम एलिमेंट से कर रहे हैं तो लग जाएगा। हाँ, मैंने इसकी जगह, जैसे मेरा 4:7 का रेशियो था, ये पेंट बन गया, इसमें से कुछ पोर्शन निकाला, तो इसकी जगह 8:11 वाला पेंट डाल दिया, तो ये मिक्सचर है, 8:11 है, इस पे नहीं रिप्लेसमेंट नहीं लगेगा। लगेगा। समझ में आया? यस यस सर। समझ गया। यस सर। कैन आई रिमूव दिस? यस यस सर। तो सर। मतलब जैसे उन्हीं एग्जाम्पल्स में होता है ना कि 20 से 24 लीटर्स मिल्क रिमूव करके एक नया मिक्सचर ऐड कर दिया मिल्क और वाटर का, तो इसमें नहीं लगेगा। रिपीट अगेन प्लीज, योर वॉइस होल्ड प्रॉपर्ली। अब आ रही है सर? हाँ।
जैसे यही होता है कभी किसी किसी क्वेश्चन में कि 24 लीटर्स ऑफ मिल्क रिमूव्ड एंड वाज रिप्लेस्ड बाय अनदर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो इस केस में नहीं लगेगा। अनदर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर नहीं लगेगा 100%। हाँ। ठीक है, बता यस दूं? सर। हाँ Yes, जी। yes, Yes, बता दो। sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट प्लीज। 20 क्वेश्चन नंबर 2। बताने का है किसी को? हाँ सर। हाँ नहीं सर। सर। आज क्यों कर रहा नो है हाँ सर। सर, बता दो। नो सर। बच्चे? आज में करवाता हूँ उसके हो बाद गया सर। देख लेते हैं। डिविजिबल बाय यूनिट डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे अगर 1 रखूंगा ना तो ये वो नंबर बनना चाहिए जो 1 से डिविजिबल हो। कुछ भी बना लो, बनेगा ही बनेगा। 24। यहाँ पे अगर 24। 2 रखूंगा ना तो कोई ऐसा नंबर जो 2 से, कुछ भी नंबर बनाओ 2 से डिविजिबल हो गई होगा अगर यूनिट डिजिट 2 है तो। हम्म यहाँ पे 3 रखूंगा, जो नंबर मैं बात कर रहा हूँ ना उसका सम ऑफ डिजिट है 15, उसको कैसे भी शफल करो वो हमेशा 3 से डिविजिबल 24. होगा। हम्म यहाँ पे जब 5 रखा तो यूनिट डिजिट 5 है, नंबर हमेशा 24. 5 से डिविजिबल होगा। हम्म यहाँ पे जब 4 रखा तो कंडीशन आएगी। 4 तो 2. डिविजिबिलिटी के लिए होता है लास्ट की 2 डिजिट, इससे पहले क्या आ सकता है? सर 2 टू। ही आ टू आ सकता है। सकता है। केवल 2 आ सकता है। हाँ नाउ 3 3 2 into 1 2. दैट इज इट्स 6। हाँ ये हो गया 96 और सर. 6 102 आंसर। हाँ क्लियर है? यस Yes, सर. sir. यस सर। Yes, Yes, sir. कैन आई रिमूव दिस? Yes, sir. Yes, Yes, यस sir. सर. यस सर। नेक्स्ट प्लीज। 21. 21. जस्ट अलाउ मी 1 मिनट। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। 21. 21 बताने का है किसी को? नहीं। नो नो सर. सर। Yes, sir. No, sir. बता दो। The selling price of one apple is equal to the cost. Selling price of one apple is equal to the cost price of 7 bananas. The fruit vendor gains 40% from the sales of apple and 60% from the sales of banana. If we sell one app banana and one apple, his overall profit is CP. बनाना की सीपी थी 100 रुपए, तो बनाना की एसपी कितनी होगी? He gains 60% from sales of banana. 160. 160. SP of one apple equal to CP of 7 banana. CP of 7 banana कितनी हो गई? 700. तो SP of one apple कितनी हो गई? 700. और अगर SP of one apple 700 है, इस पे 40% का गेन था, तो CP of one apple कितनी हो गई? सर 500. 1. The selling one apple and one banana, टोटल सीपी हो गई 600, बेचा कितने में? 860 में। 8. प्रॉफिट कितना हुआ? 260 का प्रॉफिट है 600 पे। 260. हाँ सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। There is something greater than 40%, and secondly, I'm sure it's not going to be an integral value. I'll pick this option on. I won't ठीक है solve सर। it. Clear है? ठीक है। Oh, thanks. यस सर. Shall I remove this? Yes, हाँ sir. जी सर. Next, please. Question number 2. बताने का है किसी को? यस sir. सर. नो Yes, सर। sir. Yes, sir. देख लेते हैं। इसका भी डाउट है, प्लीज लेट मी नो किसका नो डाउट है। सर. Yes, sir. मैम, कैन यू एक्सप्रेस 65 as a product of 3 numbers? 13 into नहीं 1 into 13 into 5 है. कोई दिक्कत? नो सर. इससे मुझे पता चला नहीं. x प्लस y 5 होगा, हाँ x माइनस y 1 होगा, 1 और होगा x और प्लस y स्क्वायर 13 होगा। 13. इनको जब मैंने सॉल्व किया तो हो मुझे गया. समझ में आ गया कि x 3 होगा y 2 होगा, हम्म और ये वैल्यू इधर सेटिस्फाई कर रही है क्या? हाँ ये हाँ कर रही है। तो आपसे x4 प्लस y4 पूछा, 3 की पावर 4 81, 2 की पावर 4 हम्म 16, ऐड कर दूंगा 97। हाँ या 97. ना? हाँ यस सर। सर. हाँ सर। हाँ सर. पक्का क्लियर है? शेल वी गो अहेड? Yes, sir. हाँ Yes, जी sir. यस सर. सर. 1 मिनट, पावर कनेक्ट कर लेता हूँ।
Next question. Shall I remove this? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. Next, Question number please. 3. 3. बताने का है किसी को? हाँ, sir. Yes, sir. Okay. I'm so sorry. Can you just allow me 1 minute? 1 minute का time देंगे please. हाँ हाँ, जी, sir. sir. ले लो. Fine. Let's continue. Question number 3 पे थे अपन. बताना है किसी को? Yes, sir. Sure. ठीक है. Let s equal to 1, 2, 3, 4 up to 27. 3 different numbers of this set are selected and their sum is calculated. How many such selections of 3 elements will give a sum of 72? यही पूछा ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. केसेस बना बना के देख लो, हो जाएगा. So और कोई तरीका नहीं है? सर ये नहीं उठाना ना क्वेश्चन? हाँ सर, और कोई तरीका नहीं है. नहीं, मेरे हिसाब से आइडियली ये क्वेश्चन उठाने वाला नहीं है. फर्स्ट थिंग. और हम्म. कोई तरीका नहीं है. जस्ट लेट मी थिंक. 72 लाने हैं ना यार. हम्म. हम्म. Sir, यस मैम प्लीज बोलिए. सर मैं 72/3 करती हूँ तो 24 आता है. तो मैं हाईएस्ट 27, 26, 25, 24 तक की तो लेकर केसेस बनाऊंगी ना. वो तो वैसे भी दिख जाएगा मैम. वो तो मैं कर दूंगा. हाँ. मैं और कुछ जुगाड़ देख लूँ बैठ गए. मेरे हिसाब से नहीं बैठ गए. देखो करना क्या है. आप सबसे बड़ी वैल्यू ले लो. 27 आपने ले ली. यू हैव टू टेक 3 डिफरेंट नंबर्स. तो इसके बाद 26 भी आपने ले ली. हाँ. तो तीसरी वैल्यू कितनी आएगी? बस सम नहीं कर पा रहे हो क्या तुम लोग? 19. 19, sir. 19. ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ. sir. 27 को यहाँ पे फिक्स कर देना है. हम्म. सो अब मैं 19 को क्या है 19 26 की जगह 20 25 भी लिख सकता हूँ. ठीक है सर, ठीक है. हाँ Yes, sir. सर. 21 24 भी लिख सकता हूँ. 22 23 भी लिख सकता हूँ. इसके आगे चेक नहीं करूंगा बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है. दे हैवंट मेंशन्ड एनीथिंग लाइक XYZ. हाँ जी. तो Yes, sir. 27 का एक ही 4 केस हो गए. हम्म. हाँ. फिर मैंने 27 को छोड़ा 26. और जब मैंने 26 लिया ना तो वैल्यू उससे छोटी ही लेनी है. बड़ी नहीं ले सकता हूँ. इसके साथ कितना आएगा? 21. 21. 21. पक्का? हाँ हाँ जी. 21. हाँ हाँ, सर. sir. मैं एक 22 23 भी 24 भी ले सकता हूँ. 23 हाँ. 23 भी ले सकता हूँ. राइट. सर हाँ. 23 नहीं 23 23 नहीं ले सकते. डिस्टिंक्ट लेने का है. Yes, 25 लिया. अब कितना आएगा? 24. Sir, 20 24 और और 23. 23. हाँ 23. और इससे नीचे चेक करने की जरूरत ही खत्म होगी. ये दिख गया ना? ठीक है. Yes, हाँ sir. सर. क्लियर है? हाँ जी. सर और Yes, कोई sir. ऑप्शन नहीं हो तो Yes, ऐसे sir. चेक ही करना पड़ेगा क्या ऐड कर यार करके? और कोई ऑल्टरनेट नहीं होगा. I'll tell you the reason for that. ना इसमें पार्टीशन मेथड का कहीं इसमें कुछ जुगाड़ बैठेगा बिकॉज लिमिटेशन बहुत ज्यादा है. ठीक है हम्म. ना. और सेकेंडली वैल्यू इतनी बड़ी नहीं आ रही है कि वी शुड थिंक अबाउट क्या मैं चेक करूंगा नहीं करूँ. मैनेजेबल है. ऑब्वियसली द ऑप्शन द मैक्सिमम ऑप्शन दैट आई एम हैविंग इज 21. इवन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर 21 तक जा रहा होता ना तो ट्रस्ट में कुछ ना कुछ पैटर्न बैठ रहा होता जहाँ पे आपको मैनुअली चेक करने की नीड खत्म हो जाती ओके सर. है ना. ओके सर. फिर भी अगर आपको हाँ. डाउट है तो यू कैन डू वन थिंग. 72 की जगह इसको वैल्यू को थोड़ा सा बड़ा कर दो. टेक इट टू बी 84 एंड चेक इट आउट. पैटर्न बैठेगा. तो क्योंकि मैंने भी ऐसे करा था जैसा आपने किया ना ये पूरा ऐसे और कोई ऑप्शन आ नहीं रहा था उस टाइम पे मेरे को. मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल अप्रोच ही.
ओके सर। ठीक है, चले आगे, हाँ Yes, जी। Yes, sir. sir. Yes, sir. रिमूव कर दूं? Yes, हाँ. sir. नेक्स्ट प्लीज। 6. बताने का है किसी को? नो No, सर। sir. No, sir. नेक्स्ट, No, sir. Sir, 7. बताने का है किसी को? No, sir. नो सर। Yes, sir. देख लेते हैं। Sean was asked to add the numbers from 1 to n. When the teacher asked the sum, he answered 1020. The teacher noted that Sean missed adding a few numbers between 1 and n, excluding 1 and n equal to 45. What is the ratio of minimum and maximum number of numbers Sean could have missed? क्या इसको 1 से 45 तक के नंबर्स लिखने के लिए बोला गया था? हाँ. इसका सम कितना आना चाहिए था? करके बताएगा कोई? 1 sorry. 1035. पक्का? हाँ sir, 1035. Yes, sir. लेकिन उसका सम आया 1020। हाँ. मतलब जो 15. नंबर्स उसने मिस किए उनका सम था 15। मिनिमम कितने नंबर मिस कर सकता है? 1। 1. He might have missed the number 15 itself. हाँ. मैक्सिमम कितने मिस कर सकते हैं? 5। 5. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5। 5. 5. 5. हम्म. इसका भी सम 15। पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नंबर्स ही कुड हैव मिस्ड? 1:5 should be the correct answer, नहीं? वो 1 डबल काउंट हो गया शायद। अच्छा 1 तो ले ही नहीं सकते ना भाई, हाँ sir, including exclude 1 and 1. तो ये 4 होगा। सॉरी तो 1:4 is the correct। क्लियर है? सर Yes, sir. Yes, sir. मिनट, यस मैम। अगर आप 1 कंसिडर नहीं कर रहे तो फिर आप 4 का सम 15 कैसे बनाएंगे? अभी बना देते मैडम। 2 3 4 6। अच्छा सॉरी ठीक है सर। ठीक है, हाँ चलो जी। shall we go ahead? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, बता दो sir. इसको। Yes, sir. यस सर। लेट्स Yes. गो नेक्स्ट प्लीज। Sir, 10. बताने का है किसी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Let S equal to 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बराबर। The number of subsets of S comprising composite numbers only and that of those comprising prime numbers only are, I guess there is a typing error. नहीं सर, ये आंसर आ रहा था, एक बार देखिए प्लीज। n minus n तो 0 होता है ना, क्या आंसर आएगा इसको? सर मतलब हाँ वो तो है, It बट should be ऐसे N1 जब and टेस्ट N2. बना रहे हैं। हाँ n1 और n2 ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ Yes, सर। sir. बट थोड़ा सा अंडरस्टूड भी है तो आई डोंट फील लाइक ये बहुत बड़ा हाँ सर वही। मतलब यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। ये बोल रहा है द सबसेट द नंबर ऑफ सबसेट्स कंप्राइजिंग कॉम्पोजिट नंबर। क्या इनमें से कॉम्पोजिट नंबर्स कितने हैं? 4 1 4 6 2 8 10 3 4 12 5 13 6 14 7 15। 8। सर नहीं नहीं 8 13 नहीं है है। ना। सॉरी हाँ जी हाँ बस हो गया। 8 कॉम्पोजिट नंबर्स। हाँ नंबर ऑफ सबसेट्स कंप्राइजिंग ओनली कॉम्पोजिट नंबर्स कितने बन पाएंगे? 2 पावर n। पर n बनेगा हाँ ना सर 2 पावर 8। पर 8। ठीक है। कंप्राइजिंग ओनली कॉम्पोजिट नंबर्स। हाँ 2 पर 8 सही है गलत है? जल्दी से बोलिए एवरीवन। सही है गलत है या नहीं आता? 3 ऑप्शन दे दिए। Sir, क्या? पता नहीं सर। पता नहीं सर। बस तो किसी को सर क्वेश्चन एक नहीं बार पता? आप वापस बोलना, आप क्या बोल रहे थे? आपकी वॉइस ब्रेक कर गई। मेरी वॉइस एक्चुअली ब्रेक की थी बाकी के लिए भी। नहीं सर, मेरे यहाँ नो पे सर। खराब है सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ 8 प्राइम नंबर 8 कॉम्पोजिट नंबर्स है। Yes, sir. नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग कंप्राइजिंग ओनली कॉम्पोजिट नंबर्स
2 पावर 8 हो गया। यस सर। होगा? सर एक ही सबसेट नहीं बनेगा क्या, मतलब मेरा तो डाउट ये है। ओनली, हाँ सर 2 पावर 8 होना चाहिए। एक ही सबसेट क्यों बनेगा ना? अच्छा सॉरी, सब बनेंगे 2/8। कॉम्पोजिट प्राइम नंबर्स कितने हैं? 3 4 5। 13 नंबर थे 5 हाँ 5। तो 2 2 power पावर 5। 5 5, हाँ। देन मॉड ऑफ n1 माइनस n2, ये कितना है? 2 पावर 8। नहीं सॉरी, 128। 256 माइनस 256 32। माइनस 32, 42 कितना होगा? 224। 224। 24 इज डिविजिबल बाय हाउ मेनी डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स? 224 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा कोई? yes sir मेरे हिसाब से 7 और 2 पावर 5 आ रहा है। यस सर। पक्का? हाँ sir यस सर हाँ। तो डिविजिबल बाय हाउ मेनी प्राइम नंबर्स? ओनली 2 प्राइम नंबर्स, 7 एंड 2। यस सर। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए प्लीज। सर एक क्वेश्चन था। यस मैम प्लीज। नंबर ऑफ सबसेट्स में आप 2 power n -1 करते थे ना, वो कब करते थे? मैम इसी केस में करेंगे, लेकिन दोनों में -1 होगा इसलिए मैंने उसको इफेक्ट में नहीं लाया, बाकी आप कर सकते हैं। नहीं, और -1 करते क्यों थे? क्योंकि नल से सॉरी नल, एक सेकंड, नल सेट को हटाना होता है। ओके सर ओके 2 पावर n नल सेट भी काउंट हुआ है ठीक है सर ठीक है। ना, लेकिन दोनों का नल सेट हटेगा इसलिए मैंने उसको नहीं किया। आप करना चाहे तो कर सकते हो, आंसर सेम आए। ओके सर शैल आई रिमूव दिस? हाँ जी। यस सर। यस यस नेक्स्ट सर। प्लीज। 13th 13 1 3। बताने का किसी को? नो सर। यस सर। यस सर। नो सर। नो Yes. सर। किसी ने तो पूछा था, चारुल आपने पूछा था ये 165 सही नहीं होना सर चाहिए? ये मैंने पूछा था। नहीं आपने तो पूछा था, और भी किसी ने? नहीं सर मैंने नहीं पूछा था। आपका आ गया था 15? सर हाँ मेरे को बात आ गया था ये। देखो दिक्कत क्या है, the largest integer that will always divide this for all positive even integers n। अब आप क्या करोगे, n को क्या पुट कर दोगे? सर 10 के मल्टीपल्स पुट करके One. देख लो। ये कैसे स्ट्राइक करेगा? सर क्योंकि मेरा ये गलत गया था, फिर गलत जाने के बाद मुझे स्ट्राइक करा कि 1 2 की जगह अभी अपन 10 अभी के पुट करते हैं। मेरे को तो सही करने का है ना मैडम। एज अ स्टूडेंट मैं क्या करूंगा? सबसे पहले n को क्या पुट करूंगा? 2 2 2। सबने 2 किया होगा। हाँ 3 5 7 9 11, देखते ही समझ में आ गया 11 का मल्टीपल है। हाँ हाँ 11 का एक ही हाँ, मल्टीपल है। सर आगे आंसर आएगा। चेक करेंगे ना। सर हाँ हाँ वही। अब एक चीज समझो, समझना ये है कि ये 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है। हाँ यस सर। कैन यू इंश्योर कि 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स में एक 3 का मल्टीपल आएगा ही आएगा? यस यस सर सर। हाँ। कैन यू Yes, इंश्योर sir. एक 5 का मल्टीपल आएगा ही आएगा? यस हाँ सर। हाँ कैन यू सर। इंश्योर एक 7 का मल्टीपल आएगा ही आएगा? यस हाँ सर। नो सर। सर क्या बात कर रहे हो मैम? 21 22। हाँ हाँ हाँ। आएगा तो सही। आएगा? हाँ नहीं सर 7 जरूरी थोड़े ना है। नहीं आएगा क्या? हाँ करते रहते हो तुम लोग हर चीज में यार, करके तो देखा करो। 5 consecutive multiples, 5 consecutive odd numbers just ensure कि मैक्सिमम 5 का मल्टीपल आ सकता है उसमें। I'll give you the values 9 11 13 15 17। कौन सा 7 का मल्टीपल दिख रहा है इसमें? नहीं आएगा सर। अगर 5 वैल्यूज है तो यू कैन जस्ट इंश्योर कि 5 या 3 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। एवरी 3 नंबर्स विल हैव वन मल्टीपल ऑफ 3। यस यस सर। सर। 7 के बारे में इंश्योर नहीं कर सकते हो, 11 के बारे में इंश्योर नहीं कर सकते हो, 9 के बारे में इंश्योर नहीं कर सकते हो। समझ में आया?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, We sir. just sir. ensured Yes, for sir. 3 and Yes, 5. sir. That's why the correct answer is 15. 15. Clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Shall I remove this? सर एक क्वेश्चन, Yes, ma'am, please. 3 और 5 के अलावा बाकी कोई और नंबर नहीं है जिसके लिए आप इंश्योर कर नहीं, सकते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिए ना मैम, कॉन्जिक्यूटिव, हाँ जी, पांचों ऑड है, हाँ, तो इनमें आप केवल मैक्सिमम 5 का मल्टीपल इंश्योर कर सकते हो। ये मैक्स लिमिट है। 5 से ऊपर किसी का भी इंश्योर नहीं कर सकते। ओके सर, गेटिंग इट? हाँ जी, लॉजिक समझाता हूं। क्योंकि अगर आप 5 ऑड नंबर्स दोगे तो लॉजिकली ये 10 नंबर कवर कर रहा है, इग्नोरिंग द इवन नंबर। और आपने कॉन्जिक्यूटिवली 10 नंबर लिए, उसमें एक भी मल्टीपल ऑफ 5 ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। भाई हर 10 नंबर में एक ऑड और एक इवन मल्टीपल ऑफ 5 आता ही आता है। हाँ, Yes, sir. 7 पे क्यों इंश्योर नहीं कर पा रहे? क्योंकि हर 7 में एक इवन और एक ऑड मल्टीपल ऑफ 7 नहीं आता है। उसके लिए मिनिमम 14 नंबर चाहिए आप। हाँ जी, ठीक है सर। If there would have been 7 consecutive odd numbers, you would have ensured कि हाँ 7 का एक मल्टीपल आएगा ही आएगा। और आपकी जो रैंडम इच्छा है 7 नंबर उठा के देख लीजिए। ओके सर, क्लियर एवरीवन? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Shall I remove this? यस सर, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Next please। 18. बताने का है किसी को? यस सर, हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. The polynomial this has the property that sum of its roots is 3 times the product of its root, which is equal to the sum of the coefficients of the polynomial. If c equal to 4, then what is the value of p? Great. If it's a cubic polynomial, इसका कितना रूट होगा? 3, अल्फा बीटा गामा ले लूं? यस हाँ, सर, Yes, sir. What sir. is the value of alpha plus beta plus gamma? माइनस Sir, a by 1 minus a by 1. What is the value of alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha? B. बी, B. Sorry? बी, B. B. What is the value of alpha beta gamma? माइनस Minus C. C. Minus C. यहां तक किसी को दिक्कत? नो No, सर, sir. No, The sir. property has the sum of its roots is 3 times the product of its roots. यहां तक कोई दिक्कत? नो सर, No, No, sir. sir. C equal to 4, A equal to 12, 12. 12. यहां तक कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. No, sir. Sir. Which is equal to sum of coefficients of the polynomial. What are the coefficients of the polynomial? So it's 1 1 A, plus B, B C. plus B 1 plus A plus A B Plus plus C plus plus C. C. ये वैल्यू आपको 12 पता है, which is equals to 1 plus 12 plus 4 plus B B plus C. B plus C. B plus 4. plus plus 4. Plus 4. 4. हाँ. So, तो 12 से 12 कट गया, मेरा B आ गया B -5. minus minus 5. 5. Then the value of B is -5 आ रहा है। हाँ, sure. ये -5 ही आ रहा था. I am so sorry, मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया। ये सम कैलकुलेट करते टाइम अपन ने इसका नेगेटिव इग्नोर कर दिया। नाउ द इक्वेशन इज -12 इक्वल टू 1 plus 12 plus b plus 4। तो 12 और 4 16 और 1 17। सर हिसाब से सर नेगेटिव इग्नोर क्यों नहीं करेंगे वो जब मतलब प्रॉपर इक्वल्स टू 12 आ रहा है तो -29 आना चाहिए मेरे हिसाब नहीं। एक मिनट, सर कोफिशिएंट में साइन तो नहीं लेंगे सर? कोफिशिएंट में साइन मतलब एबीसी लेना चाहिए ना? क्यों साइन क्यों कंसीडर नहीं होगा सर? ये क्या बात कर रहे हो? गुड हाँ, इवनिंग एक सर. क्वेश्चन सॉरी मैं पूछ रहा हूँ। सर, कोफिशिएंट में साइन कंसीडर होता है हमेशा। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, तो किसका साइन कंसीडर नहीं किया मैंने? c इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 12 है। अच्छा, सर हम्म, हाँ सर मैं एक बार आपको भेज रही हूँ, मेरा आया था -21।
दिखाइए मैम। सर माइनस ए और माइनस सी थोड़ी ना लेंगे। अरे माइनस ए माइनस सी नहीं बोला है, ऐसा बोला है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ कोफिशिएंट, तो सम ऑफ रूट्स तो -12 है ना। सर जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस माइनस सर चलता है ना। -3 होएगा ना, -4 नहीं होएगा, उधर bx प्लस c है। सर एक को मैंने ना सीधा 3C पुट कर लिया था। एक एक करके बोलो, सबसे पहले कौन बोल रहा है? सर दीक्षा दीक्षा बोलेगी। दीक्षा बोलिए। सर मैंने भेज दिया आपको, मैंने उसमें क्या किया ना, A = 3C आ गया, तो मैंने जब अपन सम ऑफ कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट कर रहे थे तो एक की जगह मैंने सीधा 3C डाल दिया था। अरे तो मैम यू आर नॉट गेटिंग इट, आप उसको इक्वेट करो प्रोडक्ट ऑफ रूट से। इक्वेशन ऐसी है कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज इक्वल टू सम ऑफ कोफिशिएंट्स। तो 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट से इक्वेट करेंगे ना। सर अपन c को -4 क्यों नहीं ले रहे हैं? सर दूसरे अगर सी अपन a माइनस को, है ही नहीं, सी तो 4 है। अब कोई एक एक करके बोलो जिसको बोलो। सर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर प्लस माइनस चलता है। किस चीज का प्लस माइनस, किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हो आप? डिग्री 3 इक्वेशन की? हाँ सर, कोई भी इक्वेशन की तो उसमें डिग्री फर्स्ट के इक्वेशन साथ। मैम, डिग्री 3 इक्वेशन ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। सर फिर उसको जनरल फॉर्म मतलब कौन सी फॉर्म में होता है, ये बट जनरल ऐसे फॉर्म ही तो है चलता है। मैम, किसी में भी सर प्लस माइनस नहीं चलता है। फॉर्मूले में चलता है ना सर, मतलब फॉर्मूले में सर चलता है। डिफॉल्ट। हाँ। हाँ, तो फॉर्मूले में तो मैंने भी लगाया। ओके। सो अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर शुड बी -29। इन्होंने सोल्यूशन दे रखा है क्या? एक बार सोल्यूशन भी चेक कर लेते कि अब तक उस मिसमैच हो, मेरी गलती हो। दे रखा है क्या सोल्यूशन? नहीं सर, शायद सेक्शनल का नहीं सोल्यूशन नहीं सर, होता। नहीं नहीं, देते सेक्शनल कोई वाले। दिक्कत नहीं है। आई फिगर इट आउट अगेन, मेरे हिसाब से तो -29 होना चाहिए। आई कैन नॉट फाइंड एनी रीजन फॉर दैट। वापस से रिपीट कर देता हूँ। एज अ प्रॉपर्टी दैट सम ऑफ इट्स रूट, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस है, जो आपने इधर से मुझे देख के बताया। हाँ, यस ये सर। तो इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा -C, जो आपने मुझे इधर से देख के बताया, और C का वैल्यू -4 था। -4। ये ट्रू है। विच इज इक्वल टू सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। 1 + 12 + b + 4। तो ये हो गया 12 16 17, 17 -12 -29। हाँ, -21। ये इंटरप्रिटेशन अगर, सॉरी कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई ये इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है कि सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ कोफिशिएंट, तो मेरे हिसाब से ये इंटरप्रिटेशन गलत है। अकॉर्डिंग टू मी इट्स रॉन्ग। सर मैंने भी ऐसे ही किया था, पहले सम और प्रोडक्ट का निकाला, तो फिर प्रोडक्ट जो आया ना उसको इक्वेट कर दिया उससे। मैम अगर आप सर प्रोडक्ट। इस लाइन हाँ को हाँ। पूरा एक साथ रीड करेंगे तो जो आपका हम्म। इंटरप्रिटेशन है वो आपको सही लग रहा है क्या? सर पर अगर A = B = C है, तो मेरा जो A = B है तो =C नहीं होगा। अगर A = B = C दे रखा है तो A = C होगा, B = C होगा। हाँ है ना? हम्म। मैंने भी तो वही किया। ये रहे। सर एक बार मैं वापस कर, समझ गई सर। हो सकता है मेरा इंटरप्रिटेशन गलत हो, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी बॉसी कि मेरा ही सही है, बट मेरा इंटरप्रिटेशन मेरे को अभी ये लग रहा है। और किसी को अगर मेरा इंटरप्रिटेशन गलत लग रहा है तो थोड़ा सा इलैबोरेट कर दो, हो सकता है मुझे समझ में आ जाएगा मेरा गलत है। सर यूजुअली विच वाले केस में तो आपका जो लैटर वाला वर्ड होता है उसके लिए रेफर करते हैं ना। मैम लेटर वाला वर्ड हो या लेटर वाला फ्रेज, फ्रेज ले लो, मतलब तो फ्रेज, फ्रेज ही हाँ। ले रहा हूँ। 3 टाइम्स द प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू द सम ऑफ कोफिशिएंट। हाँ सर, वो पूरा ही होगा, वो आपका वाला सही है सर चीज। आपके वाला इंटरप्रिटेशन सही है। मतलब ये हाँ गेटिंग सर। इट कि मैं वर्ड क्यों लूंगा, मैं तो फ्रेज लूंगा ना। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन गलत है? आपका क्या था? नहीं नहीं, मैंने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया।
क्या ही खुश हो रहा हूँ मेरा। अरे तो सर किसी ने तो किया होगा ना। पता नहीं, मैंने तो दिया नहीं तो फिर कौन ही करे। दीक्षा लोग, दी का सही आंसर आया था। हाँ और क्या दीक्षा। सर, मेरा भी पहले दीक्षा दीदी। -5 आया, डोंट फिर वरी मैंने अबाउट ये दैट। किया। मैं मार्क्स और आंसर दोनों अपडेट कर सर चलेगा, अब तो हो गया, क्या ही कर सकते हैं मतलब। अब सर तो दूंगा। दीक्षा शांति दी से आपको डिटरमाइन हो चाय गई। भेज रही थी सर। इसीलिए सर कर रहा मेरे हूँ, को अभी कोई तक चाय इश्यू नहीं आई, नहीं आधा है। घंटा लगता है कि चाय आने में। सर मैंने मेरे लिए ही नहीं मंगवाई अभी यहाँ से सर। मैं अरे अब इसमें ऑर्डर ही नहीं, जोमेटो मैं थोड़ी एकदम खुश चलाऊंगी। होके बैठा था, चाय आने वाली, जल्दी से निपटाओ चाय पी। मैं ऑर्डर ही नहीं, रहने सर दो। मैंने कहा क्लास खत्म हो जाए फिर करती हूँ, मैं बीच में नहीं जैसे करती। कि आप मोबाइल यूज नहीं करते हो क्लास के लिए। जवाब दो। सर करती हूँ, पर मैं बता रही हूँ ना, मैंने सोचा आराम से, फिर वो आएगा जोमेटो वाला, मेरे को जाना पड़ेगा नीचे लेने के लिए। कोई ना कोई ना। फिर सर आप मेरे से मेरा नाम लोगे, मैं होंगी ही नहीं, फिर आप मेरे को भी अगली बार अलाउ नहीं करोगे क्लास में। अरे मैम, चाय पिलाने के बाद तो मैं 2 साल तक अलाउ करूँ। जब चारुल मुझे मैसेज करिए, अब चाय मत भेजना सर को। प्राइस वाली चाय आएगी। सर नहीं सर। ये तो वैसे भी डिस्काउंटेड प्राइस वाली थी, जाने दो, अब क्या मांगू, रहने दो। कल सुबह ले आना मैडम। चलो, लेट्स कंटिन्यू विद द सेशन फर्स्ट। शैल आई रिमूव दिस? Yes, sir. यस सर। यस सर। नेक्स्ट प्लीज। 22. बताने का है किसी को? Yes, sir. बता बेटा सर। सर वैसे समझ में नहीं आएगा, इनइक्वालिटीज पढ़ा हुआ नहीं है आपका। Okay, sir. एनीवन एल्स? नो सर। No, Shall I sir. remove this? Next. यस 5 सर। steps, sir. बताना है किसी को? No, नो sir. सर। No, नेक्स्ट। no, sir. 9. बताना है किसी को? नो नो सर। No, sir. सर एक मिनट, ये आपका ये हो जाएगा ना, क्वेश्चन इजी है ना, एक बार रीड करो। The coordinates of two diagonally opposite vertices of rectangle are this and this if the number of such and the number of such rectangles, if the other two vertices also have integral coordinates. हाँ जी मैम बताइए। नहीं तो ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या? मैम, आप बोलना चाहते हो ओपनली बोलो ना। नहीं मतलब अब बता दो सर। हाँ तो ऐसे बोलने का ना पता हो, अरे बता मेरे दे। को टॉपिक का रेफरेंस याद नहीं आया जो आप हमेशा ही बोलते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैम, कोऑर्डिनेट। हाँ जी। हाँ ठीक है सर, बता दो। एक है 4,3, यस सर। एक है -4, -3, हम्म। और ये आपकी क्या है? डायगोनल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। हम्म। ठीक है, जस्ट टेल मी वन थिंग, इसका लेंथ निकाल सकते हैं? यस सर। प्लीज बताएंगे कैसे निकालते हैं? मैम आइडिया है, मैं बताऊं? सर पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा ना। मैम, दो वर्टाइसेस दे रखे हैं, केवल पाइथागोरस से निकाला लगेगा? नहीं नहीं, जैसे 4,3 का पॉइंट है आपका, तो 5 आपका एक साइड का 5 और फिर टोटल 10 निकल जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। देखो लकीली इसमें 10 बैठ गया, बट ये अप्रोच नहीं होता। ओके। अप्रोच होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। So what you would have done is 4 minus -4, that is 4 plus 4, that is 8 का स्क्वायर। हम्म। 3 minus -3, that is 6 का स्क्वायर। 8 square plus 6 square, it's 10 square, which is 100. So distance would have been 10. Clear? यस सर। अब आपको ये पता है कि आपके कोऑर्डिनेट का, आपके रेक्टेंगल का डायगोनल 10 है। हाँ है हाँ। ना? तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? 100। अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 100 लाने का कितना तरीका है? हाउ कैन यू ऐड? अपने को केवल ये पता है, अच्छा, वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट दैट। हाँ, सो हाउ कैन यू ऐड टू स्क्वायर्स टू गेट द वैल्यू टू बी 100? हाँ हमें तो एक ही पता है, 8 और 6। सर 9 और 3 नहीं। नहीं नहीं 9 और 3 नहीं।
ठीक है, सो वन ऑफ द वैल्यूज कैन बी 8 and 6। ओके। ठीक है, अब जब L को 8 पता चला तो इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डलेगा बिकॉज एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। गेटिंग इट? ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये डायगोनल है, जहां पे दोनों लाइन मीट करेंगी वो तो 90 डिग्री का होगा। हाँ। ठीक है, सो उसमें फिर एक और थ्योरम लगेगी, एक और फॉर्मूला लगेगा जहां पे एंगल आपका 90 डिग्री और इन दोनों लाइंस का स्लोप परपेंडिकुलर होगा। सो विल फिगर आउट अ पॉइंट लाइक दिस कि यहाँ पे एक पॉइंट आया, लेट्स अज्यूम ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द कंडीशन कि ये 6 है ये 8 है, या फिर वाइस वर्सा, ये 8 है ये 6 है ना। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट फिगर आउट करने पड़ेंगे, ये तरीका रहे। इट इज गोइंग टू बी अ लेंथियर वन, ओके सर। बट अप्रोच ये। सर यस मैम। आपने अभी m इंटू एन इज इक्वल्स टू -1 बोला, उसकी बात कर प्रोडक्ट रहे ऑफ स्लोप इज -1 फॉर, वन यस मैम, यस मैम, यस है ना? -1 ओके ओके सर। है ना। तो आपको निकालना पड़ेगा बहुत लेंथी अप्रोच। और सबसे मेन बात क्या है, मैं थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड इसलिए हूँ बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ थीटा पुश, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। इवन इफ यू आर फाइंडिंग आउट 5, ट्रस्ट मी यू वोंट बी श्योर इनफ कि 5 पे रुक जाएगा। यस सर। ठीक, शैल आई रिमूव दिस? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट प्लीज। 11. बताने का है किसी को? नो सर। यस सर। यस सर। मैम ग्रेटेस्ट इंटीजर सर फंक्शन समझ, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना ये तो। सर जैसे 1.2 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया, बराबर। 1.99 का उसका भी 1 है। और -2.99 का सर उसका भी -2। 1 है। -3। नहीं, हाँ -2 होगा, -2। तो -3 नहीं होएगा? सर नेगेटिव -3 में हाँ, उल्टा चलता है ना उल्टा शायद। चलते हैं, हाँ समझा -3। दूंगा, मैं समझा दूंगा। एज ऑफ नाउ पॉजिटिव की बात करनी है, पॉजिटिव आपको क्लियर है, बराबर। यस सर। यस। हाँ ठीक है। यार देखो, एक छोटी सी बात समझो। बात ऐसी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स आपको केवल इंटीग्रल वैल्यू दे सकता है। हाँ यार, यस हाँ सर। ठीक है। सो इसका इंटीग्रल वैल्यू लेट इट बी I1, इसका 2I1 होगा, यस सर। इसका 3I1 होगा, हाँ। इसका 4I1 होगा, इक्वल यस टू सर। 14। तो इधर से 10I1 इक्वल टू 14, हाँ। तो I1 इक्वल टू 1.4। ये पॉसिबल है क्या? यस सर। अरे ये कैसे नहीं पॉसिबल है मैम? सर, अच्छा नहीं नहीं, क्यों एक पॉसिबल बार। नहीं है? सर I1 की आपने क्या ली है, इसकी पूरी फंक्शन की वैल्यू? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का इंटीग्रल वैल्यू मैंने I1 लिया है और उसके साथ कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू भी होगा जो अपन कंसिडर नहीं करेंगे, हाँ। तो ये मैंने इंटीग्रल नो वैल्यू। सर। तो I1 नो इक्वल टू सर। 1.4 क्यों नहीं हो सकता है? सर क्योंकि वो लोएस्ट इंटीग्रल वैल्यू आती है ना, लोएस्ट ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू इंटीजर मैम वो फंक्शन। इंटीग्रल है इसलिए। हाँ मतलब वही कहना चाहती हूँ सर मैं भी। हाँ, हाँ। तो अब यार क्या दिक्कत हुई? अब समझो दिक्कत क्या हुई हो। सपोज योर नंबर वाज 1.2, हाँ। व्हाट इज 2x? 2.4। हाँ 2.4। अबे हाँ यार, ना बोल सर। दो। हाँ सर। हाँ सर। 3x, 3.6, 4x। 4.8। तो ये सारी जो सिचुएशंस लिखी है सब सही है। 1.2 का इंटीग्रल 1, 2.4 का 2, 3.6 का 3, 4.8 का 4। हाँ या ना? हाँ Yes, जी sir. सर। ये यस सर। 1.2 कैसे आया? अनफॉर्चुनेटली your value wasn't 1.2 and it was 1.3. So what हाँ। is 2x, 2.6, 3x, 3.9, 4x? 4.2, नहीं 5.2 सॉरी। तो ये जो 4 इंटीग्रल वैल्यू मैंने 4i लिखी ना, ये 5 आएगा यहाँ पे, 4 नहीं आया। समझ में आया? हाँ Yes, हाँ। sir. ठीक है, अच्छा ओके। समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया। तो अब दो तरीके बता दो। या तो आप टेक्निकली सोच के देखो कि व्हेन आई एम टेकिंग द वैल्यू between
1.0 to 1.25 हम्म मेरा I1 2I1 3I1 4I1 फिट बैठ रहा है, हाँ सर बट एज सुन एज आई एम क्रॉसिंग द लिमिट आई एम टेकिंग 1.25 से 1.50 मेरा फिट नहीं तो बैठ नहीं रहा, बैठ रहा बिकॉज मेरा जो तीसरा वैल्यू चौथा वैल्यू है वो 2I1 3I1 4I1 5 है वन प्लस 1 हो जाएगा। हाँ प्लस 1 करने पे भी ये क्राइटेरिया तो नहीं बैठ रहा है ना मैडम आपका, हाँ गेटिंग इट? यस सर आगे का करके देखेंगे। ओके 1.5 से 1.75 के बीच का वैल्यू होगा तो 1.75 से 2 के बीच का वैल्यू होगा, अकॉर्डिंगली विल डू दैट। हाँ क्लियर है? अब यस 1.5 से 75 के बीच का आप एक रैंडम वैल्यू ले लो, 1.6 ले लो, यस सर 1.6 3.2 4.8 हम्म दिक्कत चालू हो गई है। 1.6 वन 3.2 3 हो गया, वो 3 हो गया 2I1 सर, प्लस 1 हो चुका है यहाँ पे, 1 हो गया हाँ हाँ ये 3I1 प्लस 2 हो चुका है यहाँ पे, यस सर क्योंकि आपका 4.8 3I1 प्लस 1 है 4.8, आपका हाँ आंसर आना चाहिए था 3, इसके हिसाब से 4 आ रहा है, और 5 हाँ पॉइंट 4.8 1.6 के बाद 6.4 6.4 मतलब 4I1 2 प्लस 2 हो चुका है, हाँ और ये यस सर कंडीशन ट्रू है क्योंकि आपको जो एक्स्ट्रा चार्ज चाहिए थे वो मिल गए हैं, मतलब इसका मतलब 10I1 इक्वल टू 10 और I1 इक्वल टू 1 आ गया है, अच्छा ओके मतलब सर वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1.5, ये समझ में बैठा? यस सर ग्रेटर देन 1.5 हाँ हटा सर दूं, हाँ हटा दूं, यस सर सर ये हाँ 2 सर। पे लिमिट कर रहा है और लेकिन ये 1 से छोटी वैल्यू भी ले रहा है, हटा दूं, यस सर ले रहे हैं? हाँ सर हाँ हाँ ओके सर देंगे? सर आ ये गया सर थीटा में भी आ सकता है क्या? नहीं, थीटा में रेंज कैसे पूछेगा सर आपसे? हाँ, और ऐसा थोड़ी पूछ सकता है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ व्हाट? दैट सेटिस्फाइज दिस एक्सप्रेशन? देखो, मालिक हो इसलिए जवाब दे रहा हूँ, बाकी मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन बनाने का काम अपना है नहीं सर। ठीक है, ठीक है। और सर एक और क्वेश्चन जब इक्वल टू सर 14 दे रखा है तो किस चीज की मैक्सिमम वैल्यू पूछेंगे सर आपसे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाइज? हाँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स पूछा जा सकता है 100%। नहीं, एनीवे सर एक और क्वेश्चन, ये क्रॉस 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 की टिक भी ठीक है, ये फिर ये क्या अजीब सी डिजाइन है? सॉरी, कौन सी क्रॉस क्रॉस क्रॉस? ओह सॉरी, माय बैड सर, यू may कंटिन्यू सर प्लीज, थैंक यू। सर देखिए, यहाँ पे हम डिजाइने नहीं ऑब्जर्व करते हैं भैया। क्लियर सर, क्लियर। थैंक यू सो मच सर। शेल वी गो सर विद द नेक्स्ट नेक्स्ट वन? 14। यस सर। शेल आई रिमूव दिस? यस सर नेक्स्ट प्लीज 14, बताने का किसी को? यस सर यस सर बता दो। यस सर। यस। FN is defined as the sum of digits of the number. How many 3-digit natural numbers less than 500 are there such that FN is equal to 12? क्या बात कर रहे हो? सम ऑफ डिजिट आपको 12 लाने का है, 3-digit नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। एक काम करो, सबसे बड़ी डिजिट क्या ले सकते हो? 499। सॉरी ओ सॉरी सर कौन सी प्लेस पे मैडम, कहीं पे भी सबसे बड़ी डिजिट क्या ले सकते हो? शफलिंग 9। बाद में देखेंगे, पहले पेयर तो 9 बनाए जिनका बैठ पाएगा। 9 ले सकते हैं 9 9 के साथ क्या ले सकते हो? सर 1 0 2 या 0। 1 2 3-0 1 ले 2 सकते हो, 3 0 2-1 ले हाँ सकते हो, बस दो ही केस बनेंगे। हाँ हाँ 9 से छोटी 8 8 के साथ 4 4-0 0 या 3-1 या या 2 2 यही केस बनेंगे। यस सर 8 से छोटी 7 7 5 0 3 2 5 0 4 1 अरे रैंडम क्यों चल रहा है? 3-2 कहाँ से आया बीच में? 3 2 3 2 सॉरी सर यही केस बनेंगे। हाँ यस सर हाँ सर। 6 के साथ 6 5 1 0 ऐसे 5 0 1 2 4 2 3 3 यही केस बनेंगे। हाँ यस सर 5 के साथ
7 मैम सर, सेवन हो जीरो गया ना, 7-0 वो हो गया। 6-1 मत चीज लेना, वो रिपीट लेट हो हो जाएगी ना। हाँ, यही केस बनेंगे यस हाँ सर। 4 के साथ, यही केस बनेगा। यस हाँ इसके नीचे ट्राई नहीं करना, यस सर। एक एक करके देखते हैं। इस वाले से आपको 3 डिजिट नेचुरल नंबर बनाना है, कितने नंबर बना सकते हो? 6। क्या बात कर रहे हो मैडम, लेस देन 500 है। अच्छा हो, सॉरी सॉरी। यस सर, वही एक नंबर सर 309। एक नंबर केवल बना एक ही सकते बनेगा 309। यू कैन नॉट कीप 0 ऑन द फर्स्ट पोजीशन, यू कैन नॉट हम्म कीप 9 ऑन द फर्स्ट पोजीशन, देयर हैज टू बी 3। सर। दो बनेंगे ना? 390 भी तो 309 बनेगा। और कर दिया 390। कर दिया, सही 390 कर दिया, सही कर दिया, सही कर अच्छा यस दिया। सर ओके ओके। 390 भी है, सॉरी। भाई, ये ज्योति की वजह से अरे आज तो मैडम सर, गलत करवा दी। 4 सॉरी लोग खड़े सर। हो जाते हैं बंदूक लेके मैडम, ऐसे थोड़ी तो चलता है कोई। सर मैं ऐसे ही है सर ये लोग। यार ज्योति। नेक्स्ट 9 to 1 का बताएगा कोई, कितने बन सकते हैं? 4 4। 4 बनेंगे। 4 बनेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना कैसे? हाँ 129 हाँ 192 219 291। हाँ यस इसका सर। बताएगा कोई? 2 2 सर, 2 ही बन सर सकते हैं। 2 बनेंगे। 408 480। ओ इसका 4। 4 4 इसका 2 2 2 3। दो अच्छा ही तो 2 ही है। बनेगा, 282 या 228 है। हाँ सर। नेक्स्ट हाँ सर हाँ। सर 2 2, इसका 4। 4, इसका 4 4, 4 इसका 2 सर उसका सर सर 750 के 2 कैसे बनेंगे? मैम 5, सॉरी इसका तो एक भी नहीं बनेगा शायद। ए भाई इसका तो बनेगा ही नहीं, लेस देन 500 है। अच्छा हाँ, सॉरी सर। इसका तो एक भी नहीं बनेगा। 741 के 4 इसका बन भी जाएंगे। नहीं। सर इसका भी नहीं इसका नहीं बनेगा। सर बनेगा। इसका भी नहीं बनेगा। 156 सर बन इसका जाएगा और एक 16 दो सर बनेंगे 2 ना सर, बनेंगे। बनेंगे 165 ना, और 65 दो बन तो गया। बनेंगे ना, 156 और 165। 165। हाँ सर। तो 642 के 4 4 4। बनेंगे ना। हाँ इसके 2 2 2। 2 इसके 1 1 1। इसके 2 4 2 4। सर 4 4 बनेंगे। 4 अच्छा नहीं सॉरी बनेंगे क्या? हाँ और हाँ हाँ 3 इसका 1 1। 1 लेट्स काउंट इट आउट। 2 6 8 12 14 18 22 24 28 30 31 35 36। यस सर। यस सर। किसी को जुगाड़ चाहिए? प्लीज हाँ सर। सर। यस सर। सर ये वंशिका को नहीं चाहिए शायद। मैडम वंशिका को अरे आता मैंने है। बोला प्लीज भाई। यार सर कैसे बोल रहे हो यार आप? मैम वंशिका को कुछ नहीं आता है। आप रहने दो सर, जुगाड़ की लगा बात दो नहीं है। सर। यार मैं बोलूं वंशिका को आता है तो दिक्कत है इस बच्ची को, बोलूं नहीं आता है तो नहीं। दिक्कत है। चाहती क्या है यार ये? क्लैरिटी ना है इसको जिंदगी में। सर तभी तो मैं बोल रही थी लोग ऐसे ही हैं। हे भगवान। छोड़ छाड़ देगी ये अभी मीटिंग। Shall I टीम remove से this? छोड़ेगी नहीं, आप यस नेक्स्ट टाइम सर। से अलाउ नहीं करोगे ना, ब्लॉक कर दोगे। सर हटा अभी दूं? रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हमारा ज्ञान नीति है, मेरे को चुप रहा करो। हटा दूं क्या? सर वो शॉर्टकट जो आप बता रहे थे। मैम हाँ प्लीज, सर जुगाड़ तो बता आई एम दो ना सर। सो सॉरी फॉर दिस, देयर डू नॉट एग्जिस्ट एनी शॉर्टकट फॉर दिस। कुछ कोई जुगाड़ नहीं है, छोड़ यार। टीटा है, ठीक है। तुक्का मार यार। अच्छा ठीक है सर। ठीक है सर। हटा दूं? हाँ जी। हाँ यस सर। नेक्स्ट प्लीज। 16 बताने का है किसी को? नो सर। नहीं नेक्स्ट। 19 19 बताने का है किसी को? यस नहीं सर। सर। नो सर। अबे एक पे रहने का है ना, हाँ या ना? हाँ। यस सर। ये अभिषेक सर की वजह से हिम्मत बढ़ रही है तुम लोग ज्योमेट्री एडिशन पूछ रहे। लार्ज प्लॉट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सर 42 का 18। मन ही नहीं लग रहा सर आपके बिना। अरे चुप रहो यार, अभी आ जाएंगे फिर टाइम पड़ेगी। A large plot is in the form of a rectangle 40 to 18 meter, ठीक है। 800 meter of iron wire for fencing its above, ठीक है। The field has to be divided into many identical smaller square plots having integral sides, each of which is to be fenced with iron wire.
Find the side of each of the square plot such that the fencing wire which is left out is minimum. क्या बात कर है किस टॉपिक का क्वेश्चन है? नहीं रहे है सॉरी। मैम, ज्योमेट्री का है, ज्योमेट्री का। अच्छा सर। चलो देखते हैं। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। यस 18 सर। का है, ये 42 का है। हम्म आपके पास 800 मीटर फेंसिंग वायर है। बढ़िया बात। आपने क्या किया, इसको स्मॉलर स्क्वायर प्लॉट्स में डिवाइड कर दिया लाइक दिस। हम्म यस सर। ठीक है, स्मॉलर स्क्वायर सब में इंटीग्रल साइड है और इसकी फेंसिंग करी फिर। क्या बात है, बढ़िया। Then find the side of each of the square plot such that fencing wire left out is minimum. यार एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस है यानी साइड ऑफ द स्क्वायर है, ये यस 18 सर। के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 18 का 1/18। मैडम, क्या सॉरी। क्या? ये जो मेरा मैंने हाईलाइट किया ना, साइड ऑफ स्क्वायर, स्मॉलर स्क्वायर, हाँ कैन आई हैव द स्मॉल साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर टू बी 4? नो सर। क्यों? सर वो 18 का फैक्टर नहीं है ना मतलब इट शुड बी अ हाँ फैक्टर ऑफ 18. ऑफ 18। हाँ यस सर। हाँ। It should be a factor of 42 as well. Can I say that? यस सर। यस सर। यस It सर। should be the highest common factor. यस यस सर। सर। यस नहीं, सर। तो जरूरी नहीं है, but it should be a common factor. 18 42 का HCF निकालिए। 6। तो मिनिमम बोला है तो HCF ही होगा। मैं अभी मैं समझाता हूँ। अच्छा ओके। 6 समझ में आ गया? हाँ। मतलब the side can be of 6, हम्म can be of 3, 2 and 1 as well. यस सर। यस सर। अगर आपने 6 6 की साइड ली तो यहाँ पे कितने बॉक्सेस बनेंगे 18 के लिए? 3। 3। 3 बॉक्सेस ही बनेंगे। हाँ हाँ। और 3 बॉक्सेस मतलब फेंसिंग कितनी करनी पड़ेगी? 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस। 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस में। हाँ। अच्छा ओके ओके हाँ। ठीक है, तो 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस में कितनी वायर यूज किया होगा? 168 मीटर्स। 42 into 4। 42। यस सर। वैसे ही अगर आपने 42 की साइड ली और 6 की स्मॉलर साइड ली तो कितने स्क्वायर्स बना पाओगे? 8। 7 स्क्वायर। 7। तो स्क्वायर तो 7 वर्टिकल है। लाइंस कितनी चाहिए होंगी? 8। 8। और सारी 18 18 की है। यस हाँ। सर। दिस इज द टोटल वायर यूज्ड। हाँ यस सर। तो वायर लेफ्ट आउट बहुत ज्यादा बचा है 800 में से। हाँ। छोटी लेके देखूं? यस यस सर। 6 की जगह 3 का लिया मैंने, तो अगर 3 का लिया तो कितने स्क्वायर्स आएंगे यहाँ पे? 6। 6। 6। मतलब वायर 6। कितने हाँ। लगेंगे फेंसिंग 7। के? 42 into 7। हाँ ऐसे यस कितने सर। वायर्स आएंगे, कितने बॉक्सेस आएंगे? 14। सॉरी, 14। सॉरी, 14 सर 14। 14। तो वायर्स कितने लगेंगे? 15। 15। 15 into 18। यस सर। चलो करके बताओ, 42 into 7 कितना होता है? 294। 154। अरे क्या? सॉरी। 294। तो यार ये तो मैं बिना कैलकुलेटर के कर लेता हूँ, तो क्या ही 270। 150 270 6 5 564। 564। ये भी इससे बचा। भी ज्यादा हो सकता है, हो सकता हो, करके देखते हैं। मैंने साइड 2 की ली तो कितने बॉक्सेस बनेंगे? 9 9। कितनी फेंसिंग लगेगी? 10। 420 और इधर कितने बॉक्सेस बनेंगे? 21
तो फेंसिंग कितनी लगेगी? 22 22 कितना होता है? 21 396 396 हाँ 420 816 816 तो 800 को एक्सीड कर गया, ये तो पॉसिबल ही हाँ नहीं है. यस सर This should be the correct answer. हाँ हाँ सर यस सर क्लियर है? यस यस सर सर यस हमें 1 से शुरू नहीं करना चाहिए था फिर. मैम अगर 1 की साइड लेंगे हाँ तो बॉक्सेस ज्यादा बनेंगे. तो 2 से स्टार्ट करते. मतलब मिनिमाइज 2 की करना है साइड ना तो. लेंगे, हाँ बॉक्सेस ज्यादा बनेंगे. तो 3 से स्टार्ट करते हैं. लेट्स डन इट विद 3. वी आर गेटिंग स्टार्ट. करेक्ट. डन. मैम इट्स ईदर ऑफ द वेज. यू कुड हैव स्टार्टेड विद 6 और यू कुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम 1. कल को ये 2 बट तक चल हमें जाता तो आपका अप्रोच सही हो जाता. अभी 3 पे रुक गया तो मेरा अप्रोच सही. दैट्स इट. ठीक है सर. आपका कॉन्सेप्ट में समझ रहा हूँ, दैट इज परफेक्टली फाइन. लेकिन अब समझो ना, मैंने 3 से स्टार्ट किया तो 6 से स्टार्ट किया, तो मैं उसी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ. दैट्स ऑल. हाँ सर बिल्कुल. नेक्स्ट प्लीज. शैल आई रिमूव सर दिस? खत्म हो गए खत्म सर सर, सारे खत्म. फाइनली सर. फाइनली सर, इतने टाइम में. So finally we are done with the discussion of QA sectional test 13.